So students, we are going to see the features of this PBR 322. इसके features क्या है वो मैं आपको बताती हूँ अभी. So first very important एक cloning vector का सबसे important characteristic क्या होना चाहिए. So first is it should have the ori, that is origin for replication. Ori site. तो पहली बात तो ये है कि इट शुड हैव ओरिजिन फॉर रेप्लिकेशन. ओरिजिन फॉर रेप्लिकेशन मींस ये जो पॉइंट है वहां से यहां से प्लाज्मिड अपना रेप्लिकेशन स्टार्ट कर सकता है. प्लाज्मिड कैन इनिशिएट रेप्लिकेशन फ्रॉम ओरिजिन. इनिशिएट रेप्लिकेशन. ओके, अभी और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोकैरियोट्स हैव ओनली वन ओरिजिन. बट यूकैरियोट्स हैव multiple origins. So I am talking here about general nature of plasmids, okay, not particularly PBR 322 for this origin point. Origin मतलब जहां से replication start होगा वो point. प्रोकैरियोट्स में होता है एक ही origin, यूकैरियोट्स में होता है multiple origins. So बहुत सारी जगह से यूकैरियोटिक replication simultaneously start हो सकता है. Okay. Now we will talk about the selectable markers. तो selectable markers क्या है वो अब हम लोग अभी देखेंगे. ओरिजिन ओराई साइट का और एक पॉइंट मैं आपको बताती हूँ कि अगर ओराई साइट ज्यादा रहेंगे तो इट कैन मेंटेन अ हाई कॉपी नंबर. मेंटेन अ हाई कॉपी नंबर मतलब ज्यादा प्लाज्मिड्स रह सकते हैं एक सेल में. Okay, now we will talk about the second property characteristic कि जो एक प्लाज्मिड में होना चाहिए for it to be eligible as a cloning vector. So second is selectable markers. So selectable markers are some points on the plasmid which are going to choose non-transformants from transformants. So which are going to select transformants. What are transformants? The cells which have the recombinant DNA. Cells having recombinant DNA from non-transformants. Example, ampicillin resistance property या tetracycline resistance property. How they are used that I will discuss in a short while. So देखिए selectable markers हमें किस बहुत important है प्लाज्मिड में selectable marker का होना, because वो selectable marker की वजह से we will be able to differentiate which cell is a transformant. मतलब कि अगर हमने ये सारा experiment किया, okay, और हमने एक प्लाज्मिड में एक जगह पे अपना insert डाला है तो हमें पता चलना चाहिए कि कौन से सेल में अपना insert है और कौन से सेल में अपना इंसर्ट नहीं है. सो कौन से सेल में अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए है और कौन से सेल में अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं है, ये चूज करना है हमें, बिकॉज वी आर डूइंग एक्सपेरिमेंट. देयर आर थाउजेंड्स ऑफ सेल्स व्हिच आर डूइंग. 1000 में से हार्डली वन ऑफ द सेल में हैव दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए. तो वो सेल हमें चुनना है. इसके लिए हमें चाहिए सिलेक्टेबल मार्कर्स. तो सिलेक्टेबल मार्कर्स का क्या रोल है to differentiate between recombinant या between transformants मतलब जिनके पास recombinant DNA है और
we are going to choose it against the cells which do not have recombinant DNA, which are called as non-transformants. ठीक है, मतलब we are talking about the bacteria having DNA, bacteria not having recombinant DNA. Okay, and now we are going to see कि हम लोग ये इस PBr 322 का यूज करके how do we select between transformants and non-transformants. Now the third feature related to this only, that is cloning sites. Now understand, in this PBr 322 we have two cloning sites. One is for ampicillin resistance, which is a selectable marker. Second is for tetracycline resistance. अभी ध्यान से सुनिए बिल्कुल. If I place my insert, now we are not talking about the upper three enzymes, we are talking about these two places, ampicillin and tetracycline. So suppose my insert, what is insert? It is the foreign DNA. If I place my insert, अगर मैंने मेरा insert ampicillin रेजिस्टेंस जीन में डाला तो क्या होगा? दिस जीन विल गेट इनएक्टिवेटेड एंड जो सेल्स है मेरे बैक्टीरियल सेल्स, वो सेल्स जो प्लेट है, सपोज मैं अभी वो एक्सपेरिमेंट करूंगी तब क्या करूंगी? आई टेक 2 प्लेट्स कंटेनिंग 2 एंटीबायोटिक्स. एम्पिसिलिन एक प्लेट में रहेगा एम्पिसिलिन, और दूसरे प्लेट में रहेगा टेट्रासाइक्लिन. ओके, सो ये जो अगर मैंने मेरा फॉरेन डीएनए या इंसर्ट अगर मैंने इस साइट पे डाल दिया एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट के साइट पे, यहाँ पे पीएसटी या PUV1 के साइट पे, तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन विल बी इनएक्टिवेटेड एंड द बैक्टीरिया, मतलब मेरे जो रिकॉम्बिनेंट है, दे विल नॉट ग्रो इन एम्पिसिलिन but they will grow in tetracycline. So they will get inactive, ampicillin resistance gene will get inactivated. The bacteria will not grow in ampicillin but grow in tetracycline. Is this clear to all of you? यहाँ पे इंसर्ट मैंने डाला है तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन इनएक्टिवेट हो जाएगी. Cell will no longer remain resistant to ampicillin, but यहाँ पे मेरा insert नहीं है तो bacteria will not grow on ampicillin but they will grow on tetracycline. अभी समझिए, अगर मेरा insert मैंने tetracycline region में डाला, so my insert is in tetracycline resistance part, then tetracycline region will get inactivated. ओके, मतलब यहाँ पे मैंने मेरा इंसर्ट डाला तो ये जीन तो गई काम से, इट विल नॉट वर्क. तो बैक्टीरिया विल बी सेंसिटिव टू टेट्रासाइक्लिन बट दे विल ग्रो ऑन एम्पिसिलिन. तो टेट्रासाइक्लिन मेरी इनएक्टिवेट हो गई जीन, लेकिन सो बैक्टीरिया कहाँ पे ग्रो नहीं होंगे? बैक्टीरिया विल नॉट ग्रो in tetracycline but they will grow in ampicillin. Is it clear to all of you? So यहाँ पे मेरा insert डाला ampicillin resistance, ampicillin cell will become sensitive to ampicillin, लेकिन tetracycline में grow होगा. अगर मेरा insert मैंने tetracycline में डाला तो cell will become sensitive to tetracycline but it will grow on ampicillin. Okay, तो now अभी ये आप ध्यान से सुनिए कि इस एक्सपेरिमेंट में मुझे क्या करना पड़ेगा. मुझे तो पता नहीं है कि मेरा इंसर्ट जो मैंने डाला है वो एक्सपेरिमेंट मेरा सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं हुआ है. सो दिस रिक्वायर्स साइमल्टेनियस प्लेटिंग ऑन बोथ द प्लेट्स, क्योंकि यहाँ पे भी मैंने इंसर्ट डाला है, यहाँ पे भी मैंने डाला है. तो आई डोंट नो which cell has got the gene in which region, it is here or it is here. So it will require simultaneous plating on both the plates. So how do you? बिल्कुल ध्यान से सुनिए. Suppose
This is a plate containing ampicillin, which is an antibiotic. This is a plate containing antibiotic tetracycline. ओके, तो अभी समझो कुछ कॉलोनीज है ये जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स है, तो मैंने यहाँ पे ये क्रॉस वाले जो कॉलोनीज है, these are non transformants, means they are growing in both the plates. यहाँ पे भी क्योंकि उन बैक्टीरिया में इंसर्ट है ही नहीं, मीन्स एक्सपेरिमेंट्स नॉट सक्सेसफुल, तो इंसर्ट उनमें गया ही नहीं, तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स है। लेकिन कुछ बैक्टीरिया है जो कि ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। तो अगर अभी समझिए, अगर मुझे एक बैक्टीरिया, तो ये दिस आई एम टॉकिंग अबाउट इज अ बैक्टीरियल कॉलोनी, बैक्टीरियल कॉलोनी। Now suppose I have got the bacterial colony over here. यहाँ पे मुझे एक बैक्टीरियल कॉलोनी मिली है और बिल्कुल राइट में यहाँ पे मुझे कोई बैक्टीरियल कॉलोनी नहीं मिली। सो यहाँ पे ग्रोथ है, बैक्टीरिया यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब ये है कि this bacteria is growing on ampicillin but not on tetracycline. It means the insert is present in ampicillin region and my experiment has become successful. Are you getting this? So यहाँ पे insert है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, there's no colony over here, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि मेरा इंसर्ट एम्पिसिलिन में है, टेट्रासाइक्लिन में नहीं है। ओके, sorry, the bacteria are growing in ampicillin resistance but not in tetracycline. इसका मतलब मेरा इंसर्ट टेट्रासाइक्लिन में है और एम्पिसिलिन में नहीं है। So my insert, इसका मतलब क्या है? The insert is present in tetracycline region but not in ampicillin, क्योंकि वो एम्पिसिलिन में ग्रो हो रहा है। इसका मतलब सेल इज एबल टू टॉलरेट एम्पिसिलिन, मतलब उसकी जीन इंटैक्ट है। एम आई क्लियर विद दिस? इट इज नॉट ग्रोइंग इन टेट्रासाइक्लिन, इसका मतलब मेरा इंसर्ट कहाँ पे है? टेट्रासाइक्लिन। मतलब ये कॉलोनी है, दिस कॉलोनी इस बैक्टीरियल कॉलोनी में इंसर्ट इज प्रेजेंट इन टेट्रासाइक्लिन पार्ट, नॉट इन एम्पिसिलिन पार्ट। अभी उल्टा देखते हैं। Suppose I have found a bacteria growing here but not here. तो रेड वाला क्या इंडिकेट करेगा? रेड बैक्टीरियल कॉलोनी विल इंडिकेट दैट द इंसर्ट इज इन, कौन से रीजन में इंसर्ट है? मेरा एम्पिसिलिन में, क्योंकि एम्पिसिलिन में कोई भी बैक्टीरियल कॉलोनी ग्रो नहीं हो रही है। Insert is in ampicillin resistance but not in tetracycline resistance part. Okay, so that is why it is able to grow in tetracycline, because यहाँ पे उसका insert नहीं है लेकिन यहाँ पे है। So this would require simultaneous plating, एक साथ दोनों प्लेट्स के ऊपर अपने कॉलोनीज हमें ग्रो करने हैं। So this is a tedious part. So what is the disadvantage means? Why it is tedious? Because this technique requires simultaneous plating on two plates, one having ampicillin, second having tetracycline. Okay, so this is a bit tedious part. आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। मैं वापस एक बार रिपीट करती हूँ, ये चारों जो कॉलोनीज है ब्लैक वाले, ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स है, दे आर नॉट ट्रांसफॉर्म। अगर मुझे बैक्टीरिया एम्पिसिलिन प्लेट पे मिलता है, टेट्रासाइक्लिन पे नहीं मिलता, एम्पिसिलिन पे मिलता है मुझे बैक्टीरिया, इसका मतलब ये है
कि इंसर्ट एम्पिसिलिन में नहीं है, इंसर्ट कहाँ पे है, टेट्रासाइक्लिन में है, बिकॉज वो टेट्रासाइक्लिन पे ग्रो नहीं हो पा रहा है. दैट मीन्स दीज बैक्टीरिया आर ट्रांसफॉर्मेंट्स. रेड वाली कॉलोनी अगर मुझे टेट्रासाइक्लिन पे मिलती है, एम्पिसिलिन पे नहीं मिलती, इसका मतलब है my bacteria is having insert in ampicillin and not in tetracycline. So these red and blue bacteria are transformants. That is how we are able to select transformants from non-transformants by this experiment. Simultaneous plating on two plates can be done by replica plating experiment. Replica मतलब exactly जो प्लेट हमने जो हमने क्लॉथ यूज किया है इस प्लेट के ऊपर बैक्टीरिया ग्रो करने के लिए, वही क्लॉथ हम लोग इसके ऊपर भी यूज करेंगे. साइमल्टेनियसली वी आर गोइंग टू प्लेट आउट द बैक्टीरिया ऑन बोथ द प्लेट्स. ओके, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसफॉर्मेंट, बट इट इज अ tedious process. So there is one more way by which we can select the transformants. Okay, and that technique is called as insertional